Kashmiri names in at each species level. It's very difficult. If somebody starts doing today, so maybe after 100 years or 50 years, he may be able to succeed. It is not difficult because there are some characters which differentiate this species from this species. Just for example, 17 year cicadas are then 13 years cicada. But in India, northeastern India, our some scientists, they found some special kind of cicadas. When was this World Football Cup held in last, I think, 2020? Huh? 2020, na? In Qatar. Wherever. But which was the year? 2020. So, after 4 years it is celebrated. So now it will be, what about 24 also? 22 tha. Yeah. Because last one was in 22 and now it will be in 26. Means next year. Why I am telling about? I am not a football player. I am telling you because one particular kind of cicadas have been named as World Cup cicadas because their emergence coincide with the this World Football Championship. From 22 20, they emerged in Manipur and northeastern India in 22, coincided with the World Football Cup Championship. And then in 26, they will also emerge. So scientifically also they have named that cicada. But popular name is, for example, the World Cup cicadas. Likewise, I am giving you a clue or indication to name some cicadas of this location also. But if some scientist works, only then you will come up know that some different kind of cicada has not been documented or not identified. This is new because people have not worked. So you may find something new. But not only I am focusing how to connect this biodiversity, this knowledge, this ethos, this body of knowledge with today, day-to-day livelihoods, awareness. For example, if I landed at Sheikhul Alam Airport, everybody knows where is Sheikhul Alam Airport. But if I ask the same question in Jammu or Delhi, maybe people may not be able to tell me where is Sheikhul Alam. Which particular two trees are standing which are unique at Sheikhul Alam Airport? Can you tell me? They are very unique trees. Can you name those trees? Because those trees have golden look during autumn. And they are from dinosaur times. They have seen the dinosaurs. Dinosaurs perished, but they are still surviving. Not those trees where at Sheikhul Alam, I mean to say the species. And they are older trees which have also witnessed the Hiroshima bomb blast. And they survived that Holocaust. You see the resilience of a tree. Which is that tree? Planted fondly at Sheikhul Alam Airport, Srinagar. No. I gave you so much clue, so much history. It is Ginkgo biloba, living fossil tree. Somebody told me in Kashmiri, also somebody has coined, maybe Ajiz tree. I don't know how he has coined. But it has the fan-shaped leaves which turn golden, yellow during autumn time. Also named as maiden hair tree. Ginkgo biloba. This is the only unique conifer. Gymnosperm, not conifer, gymnosperm. It has its own order and own family where no other plant is surviving except this single species. So this is 270 or 272 million years old species that emerged on this planet Earth when humans, no orangutan or no chimpanzee or no humans were living on this planet. You see, that is long back Mesozoic era, 272 million. 27 करोड़ साल पहले जो वजूद में आया और वो अभी तक मरा नहीं. हमने बम के ब्लास्ट भी किए, हॉलोकॉस्ट सब कुछ मर गया. अभी लोगों को डिफॉर्मिटीज जेनेटिक हो गई थी वहां.
हिरोशिमा नागासाकी में, बट देयर आर 6 ट्रीज इसी के, जो वहां पे उस वक्त वो भी चार्ड हो गए, ब्लैक हो गए, आफ्टर ऑल रेडिएशंस ने उनको भी बर्न किया, बट दे हैड द इनर रेजिलियंस एंड नेक्स्ट ईयर इन द स्प्रिंग सीजन दे गॉट न्यू शगुफे आ गए, नए पत्ते, दे आर स्टिल स्टैंडिंग एंड सर्वाइविंग, और टूरिस्ट आर गोइंग टू विटनेस देम। कि हिरोशिमा का बम अटैक इंसान क्या करता है कुदरत के साथ, खुदा के बनाए हुए हुस्न के साथ, और कुदरत की क्या इंजेन्युइटी है, क्या इंजीनियरिंग है, क्या स्किल है कि उसमें अभी भी दम है। और ऐसे भी आपने सुना होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसको हम कहते हैं कभी कभी, मैसिडोनिया से आया और उस यहाँ भी आया हिंदुस्तान में भी, उसका भी एक पर्टिकुलर क्रेटे आइलैंड कोई लोकेशन है, वहाँ पे ग्रीस में ही है, वहाँ पे ऑलिव ट्री है विच इज एस्टिमेटेड 4800 ईयर्स ओल्ड, और जिसने के अलेक्जेंडर की वो एम्पायर देखा है। और इसी तरह से एक और ट्री, उसको बोलते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पुराना बूढ़ा पेड़, और वो है एक किस्म का पाइन, उसको बोलते हैं पाइनस लांगीवा, जिसका नाम ही लांगीवा, लांगीविटी, और उसकी बोर जो स्टेम बोर करके हम काउंट करते हैं रिंग्स, ट्री रिंग्स, उसकी काउंटिंग करके उसका साइंटिफिकली स्टैब्लिश की हुई है 4800 समथिंग ईच। सो देयर आर ट्रीज जिनको हम कहते हैं रेड वुड ट्रीज, विच आर वेरी यूनिक टू द नॉर्दर्न अमेरिका, कैलिफोर्निया, और देयर आर रेड वुड नेशनल पार्क आल्सो, और इतने बड़ा बड़ा ह्यूज उनका वो है गर्थ कि उसके बीच में से सड़कें भी हैं, देयर आर व्हीकल्स कैन क्रॉस थ्रू। कैन यू टेल मी दैट ट्री कि उसका एक रिप्रेजेंटेटिव आपके कश्मीर में है, हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है, वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट ट्री, वेयर इज दैट, बताएं? आइडिया नहीं है ना। जब टूरिस्ट बाहर का आता है उसको भी कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि अगर कोई गाइड बने, बच्चे हो सकता है कभी कोई एक्टिविटी इस तरह की गाइडेंस, यहां पे यू शुड शेयर योर विजडम ऑफ योर एल्डर्स। या इसमें यूनिक क्या है, कश्मीर में आके क्या है, अभी तो मैंने कहा चुपचाप वो देखते हैं, किसी पहाड़ को देख रहे हैं, बादल को देख रहे हैं, नदी को देख रहे हैं बस, बट देयर इज मेनी थिंग्स विच आर हिडन फ्रॉम द कॉमन आई, तो उनको दिखाने की जरूरत है। रेड वुड ट्री में 3 किस्म के हैं, एक है जिसको बोलते हैं डॉन रेडवुड। डॉन क्या होता है? सुबह, रात, अगर ये कहो कि गम की रात है, उदासी भरी रात है, देन देयर इज अ होप। और आज कौन सा डे है बता सकते हो जी, कौन सा डे है? दिस इज इंटरनेशनल डे ऑफ डांस। आज कौन सा डे है? इंटरनेशनल डे ऑफ डांस, 29 अप्रैल। और क्यों है? दिस इज इन रेवरेंस इन द किसी का बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ अनदर बैले डांस का। ही इज फादर ऑफ इंडियन बैले और मॉडर्न बैले। ही इज अमेरिकन नो डाउट, उन्होंने ही रखा है, बट दैट इज ऑल्सो बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो जब हम डांस, कोई उसी का जरूरी नहीं है, वी कैन टॉक अबाउट आवर कश्मीरी डांस। मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट रूफ डांस जो है, इज इट इन पर्टिकुलरली स्प्रिंग सीजन या एनी टाइम? ऐसे तो चलो आज हम कर सकते हैं, ट्रेडिशनली क्या था? इज इट कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ सीजन के साथ, है ना? तो दैट इज द ब्यूटी। जैसे हरुद है और दूसरा आपका वो है, उसको क्या बोलते हैं? सोंठ और हरुद। क्या ये आप देखो ऑनेस्टली और बताइए, आप जिसको हरुद और सोंठ का पता नहीं है, होगा पता, बट अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, अगर एल्डर्स विल नॉट टॉक टू द चाइल्ड, तो जस्ट पॉसिबल ए टाइम विल कम कि वी विल फॉरगेट दिस वोकैबुलरी। हरुद क्या होता है, सोंठ क्या होता है, मैंने क्यों सीखा? आई एम नॉट ए कश्मीरी, बट बिकॉज ऑफ अर्ज टू लर्न, सो आई गॉट दिस वोकैबुलरी। सो रेड वुड आपका कहाँ है? जो आपको बोला था मैंने, वो है टंगमर्ग। एंड वाई द नेम है टंगमर्ग? मुझे लगता है मीडो ऑफ पियर्स, पियर इज टंग। तो उसके बगल में एक है यारिका फॉर्म, वहां पे RRL जो है
आजकल जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहते हैं, उसका वहाँ पे फार्म है, मेडिसिन प्लांट फार्म। कभी आप जाएं, थोड़ा सा वहाँ से टंगमर्ग से आपको बारामूला रोड पे जाना है थोड़ा सा, देन लेफ्ट साइड वो है, जाना चाहिए। आई डोंट नो वेदर यू हैव गाना, जो आप बता रहे थे धर्मचंद जी कि आप बायोडाइवर्सिटी पार्क बना रहे हो, वेरी गुड। तो मुझे लगता है एक टीम छोटी सी, दोज हु आर कनेक्टेड विद दिस बायोडाइवर्सिटी, दे शुड विजिट दैट यारिका फार्म। तो वहां पे है आपका जायंट रेड वुड ट्री। एक तो मैंने डान का बोला, फिर डान से मैं चला गया थोड़ा सा, उसको मैं बाद में कवर करता हूं। तो ये कौन सा है यारिका में? दैट्स ए सिंगल ट्री। किसने प्लांट किया था? ऑब्वियसली ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर्स। तो वो कहते हैं शायद ओरिजिनली दे ब्रॉट दो प्लांट लगाए थे, लेकिन एक तो पेरिश कर गया है, एक तो दिखता नहीं, पैदा नहीं हुआ होगा या पता नहीं क्या हुआ, बट वन इज स्टिल सर्वाइविंग। उसके ऊपर काफी ज्यादा बाबा गुलाम बादशाह यूनिवर्सिटी ने भी कोशिश की, शायद कश्मीर में भी हुई होगी, उसको हम और मल्टीप्लाई करें। तो आजकल इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगता है यार उसकी करो आप भी ट्राई, कि उसका एक पौधा इधर लगा। आपने तो बोला मुझे कि देवदार लगाएं, चिनार लगाएं, ये तो ठीक है, पर रेड वुड ट्री एक ही है, और बहुत सी स्ट्रगल हुई, साइंटिस्टों ने ट्राई किया, लेकिन उसका सेकंड रेप्लिका हम नहीं क्रिएट कर पाए। सो दिस इज अनदर एरिया वेयर सम साइंटिस्ट, सम डेडिकेटेड पर्सन कैन वर्क फॉर प्रोपेगेटिंग दिस यूनिक ट्री। और डान रेडवुड क्या है? डान रेडवुड इसलिए डान रेडवुड के दैट इज द ट्री विच वाज नोन टू ह्यूमैनिटी, नोन टू साइंस ओनली थ्रू फॉसिल्स। सबसे पहले हमें उसके चट्टानों से फॉसिल दिखे और उसका नाम दे दिया गया मेटासुकोइया ग्लिप्टोस्ट्रोबाइडिस, चाइनीज एरिया में कहीं। बाद में आफ्टर ए सेंचुरी टीम ऑफ साइंटिस्ट रियली लोकेटेड दैट ट्री लिविंग इन द फॉरेस्ट, इसलिए डान होगी। पहले अंधेरा था, मीन्स बस ये मर खप गया ट्री, इट इज नॉट सर्वाइविंग, इट इज ओनली इन फॉसिल्स, मर गया, एक्सटिंक्ट है। The tree which was declared as extinct, seen only through fossils, was seen surviving। और वो प्लांट चाइना का है। मैंने अभी शिकागो की बात कर रहा हूँ, जहाँ मैं विजिट किया, ईच एंड एवरी हाउस होल्ड हैज प्लांटेड द डॉन रेडवुड ट्री। एक तो वो उसका येलोश ग्रीन टिंज होता है समर में, और फिर वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है, जैसे आपकी ये कपड़ा है आपका ना, शर्ट, इस कलर का हो जाता है। इट एड्स कलर एंड चार्म टू द ऑटम। मैं हैरान हो गया यार, कई बार हम कहते ये काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, ये काम पता नहीं किसी म्यूजियम का होगा, जू का होगा, वो करेंगे, हम क्यों? ना ना, ईच एंड एवरी सिटीजन प्राउडली प्लांटेड दैट डान रेडवुड ट्री इन देयर कोर्ट यार्ड। तो हम कोई एक चुन के, कोई भी हो सकता है वो, क्या उसको हम इस तरह से ओन करके ज्यादा से ज्यादा प्लांट करें? और जहां पे भी आप प्लांट ऐसे कर ही रहे हो जो नोन टू एवरीबडी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्ट टेलिंग कि हमने देवदार लगाया है, चिनार लगाया है, तो कोई इंप्रेस होगा भाई, वो कहेगा हाँ हाँ हमारे कैंपस में भी है। अकबर ने कितने लगाए नजीम बाग में, हैं वो, यस। बट आप बोलोगे ये रेडवुड ट्री लगाया है, या आप बोलोगे हमने ये कोई आलिव लगाया है, आलिव भी थोड़ा कम होता गया, हो रहा है। तो कोई यूनिक, जैसे मैं गया इधर दूध पथरी में, तो मुझे बताया गया कि भाई शेखुल आलम जो है यहाँ पे बैठा करते थे, गॉड नोज, अब उसको कोई एविडेंस तो मैं कहाँ से ढूंढूंगा, बट जो एल्डर्स बता रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, और यहाँ पे एक पत्थर है वहाँ पे, विच आई सॉ माई सेल्फ, यहाँ पे वो लगता है ऐसे कि शायद कहीं गर्म किया होगा कुछ। वो कहते हैं उन्होंने दूध पीते थे, पहले तो खाना भी छोड़ दिया, फिर वो तब तो भोपल हाग वगैरह खाते थे, नूनर शूनर, फिर वो भी छोड़ दिया था कहते, फिर वो सर दूध ही पीते थे। तो कहते यहाँ पे ये चूल्हा उनका है, और वो लोकेशन इज सेक्रेट टू, और उसमें देयर आर सम कॉनिफर ट्रीज ऑल्सो। तो इसी तरह से कोई ऐसा ट्री हो विच इज एसोसिएटेड विद सम पर्सनैलिटी, मे बी सेंट, हबा खातून जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू नेम ए प्लांट विच इज नेम्ड आफ्टर हबा खातून? है नहीं, हब्बा खातून के ऊपर हमें प्राइड नहीं होना चाहिए? वीमेन एम्पावरमेंट की बात अब हो रही है, और भाई 16th सेंचुरी में वो थी, 14th सेंचुरी में तो लल देत थी, और उसको कितना रेवरेंस है तब भी, और आज भी है। तो तब क्या होगा? इवन शेखुल आलम जो है मेरी मां के बराबर है, लल देत। और हब्बा खातून के नाम से कोई पौधा, क्या ये जो ट्री टाक है, इसमें हम ये बात करते हैं कि हब्बा खातून ने ही नाम दिया था गुलमर्ग, नहीं तो पहले उसका नाम गौरी मर्ग था, बिकॉज शी वेंट देयर, शी सा फ्लावर्स एंड फ्लावर्स अराउंड। हालांकि नाम फिर कई बार
हम भूल जाते हैं कि किसने ये नाम दिया। गुलमर्ग, मेडो ऑफ फ्लावर्स ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन फर्स्ट नेम वाज अटर्ड बाय दैट ग्रेट लेडी हु लव्ड नेचर। तो ये जो नाम होते हैं इसके पीछे हिस्ट्री होती है एक, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का सोच होती है, इसके ऊपर उनकी स्ट्रगल होती है। जैसे बुर्ज होमा इधर है डाची गांव के पास, बुर्ज होमा वो घर, वो है हैबिटेशन मेगालिथिक टाइम की, माय गॉड उस वक्त बुर्ज कुल कितना इंपॉर्टेंट था। देन इट वाज ग्रोइंग इन श्रीनगर। अब तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर हो गया, अब कम दिखता है। हालांकि यू शुड प्लांट है आपके इधर बुर्ज कुल, यू शुड प्लांट, क्योंकि ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, लग जाएगा। बट बुर्ज कुल तो आपकी हिस्ट्री वहां से शुरू होती है कश्मीर की, तो बुर्ज कुल लगाना नहीं और कहाँ लगाना। फिर ये पहला पेपर था 16वीं सदी में, जब अकबर आते तो वो दूसरा कागज ये जो आज वाला है मॉडर्न कागज ये आता है। उससे पहले हम उसी के ऊपर, और आज भी जो है तावीज लिखना होता तो हम कहते नहीं वो उसके ऊपर लिखा हुआ तावीज जो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दैट इज ए फेथ। इसमें हमें एविडेंस क्या ढूंढ रही है? दिस इज द फेथ एंड रेवरेंस टुवर्ड अवर एल्डर्स जिन्होंने इस तरह से किया। और दिस पर्टिकुलर ट्री जिसको बर्च ट्री कहते हैं या बुर्ज कुल कहते हैं, दिस हैज नर्चर्ड अवर अर्लियर सिविलाइजेशन इन कश्मीर। तभी तो नाम है भैया, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल, नॉट ओनली दैट इट हैज हेल्थ बेनिफिट्स। इसकी चाय आप पी सकते हैं, बार की मैंने पी है सो मेनी टाइम्स। और कुछ लोग इसमें सुराख कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं सामने मार्च में, और फिर वो सैप आता है स्प्रिंग टाइम ना, नीचे से आता है प्रेशर के साथ, तो दैट सैप इज यूज्ड एज हेल्थ टॉनिक। हालांकि नोमैडिक ग्रेजियर जो रहते हैं पहाड़ों में उनको आइडिया होता है, बट दिस इज का ट्रेडिशनल नॉलेज। तो जो बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसमें इन सारी चीजों की निशानदेही है कि ये जो पीपल्स नॉलेज है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, which was accumulated over centuries through hit and trial by our elders, need to be documented, need to be told and retold to the younger generation. और वो क्लू लेके उसको आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल हुमायूं रशीद जी की तरह साइंटिस्ट होगा, डेफिनेटली ही मे इम्प्रूव अपॉन, ही मे पुट द टेक्नोलॉजी आल्सो, कि जो हम पी रहे हैं, हंद खा रहे हैं, तो क्या इसका रियली इफेक्ट है, जो हम कहते हैं रिच इन कैल्शियम, रिच इन आयरन। कुछ लोग तो इतना दावा करते हैं कि हंद की रूट का पाउडर खाने से, या उसकी चाय पियो जो भी रूट की, तो वो इतना कि जिसको कीमोथेरेपी रिकमेंड हुई हो कैंसर की वो स्टेज, उसमें भी वो कह रहे हैं शफा देता है। तो इसको एक साइंटिस्ट और अच्छे तरीके से, हालांकि साइंटिफिक डोमेन में है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं, अब पेपर ही प्रिंट होते हैं कि एक्चुअली एफिकेसी उसकी उस हद तक है, पर ना भी हो तो एटलीस्ट हार्मफुल तो नहीं है ना। उसको वेजिटेबल के तौर पे खाइए, उसको चाय के तौर पे, बेवरेज के तौर पे लाइए। तो इस सारी जो बात का जो है निचोड़ यही है कि इसी का नाम हमने ट्री टॉक, और मैं बता रहा था 2010 में दिसंबर में डिक्लेरेशन होगी, डिकेड, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। भाई एक साल से काम कुछ नहीं चलेगा, पर उससे पहले उन्होंने 2011 के साल को बोला इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट। तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की छोड़ के बोला मुझे नहीं करनी यार, ये लोगों को मुझे रूल नहीं करना। हालांकि रूल तो फॉरेस्ट में थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, बट वो दूसरे ढंग से है, पर इसमें कुदरत के साथ रिश्ता मेरा बड़ा नजदीकी होगा, है ना। तो आई जम्प टू द फॉरेस्ट सर्विस। तो मैंने कहा एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, और मैं इसीलिए आया कि मुझे फॉरेस्ट से प्यार है, जब फॉरेस्ट के बारे में सीखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं कि जो इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो जो कह रही है यूनाइटेड नेशंस, तो सरकार पता नहीं कब कोई प्रोजेक्ट बनाएगी, प्लान बनाएगी, फिर उसको किस में लगाएगी और क्या होगा, गॉड नोज। लेकिन एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर ऑन माई इंडिविजुअल लेवल आई स्टार्टेड दिस कैंपेन, ट्री टॉक कैंपेन। तो फर्स्ट इसका जो इंटरेक्शन शुरू हुआ वो हुआ 19 दिसंबर, चूंकि दरबार मुंह में 6 महीने इधर आते हैं, 6 महीने उधर जाते हैं। तो जब ये आइडिया मैच्योर हुआ है दिमाग में, शुरू हुआ दैट वाज दिसंबर। तो दिसंबर में ऑब्वियसली आई वाज इन जम्मू। विंटर में यहाँ तो चिल्ले कलां तो 21-22 को होता शुरू, दिसंबर 21 दिसंबर। तो चलो चिल्ले कलां तो नहीं था, बट थोड़ा सा हमने वहीं से शुरू किया, और आइडिया भी नहीं था कि इसको इतना पॉपुलैरिटी होगी। और जब हमने समवेयर इन मे, जब दरबार मुंह वहां से होगा, तो ऐसे ही होता है, जो एकेडमिक जैसे इन्होंने भी कुछ लोग होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता इसमें कौन से फंड्स यूज हो रहे थे। आई एम सिंपली टॉकिंग अबाउट ट्रीज और नेचर एंड एनवायरनमेंट। लेकिन उन्होंने मुझे पीसीसीएफ थे उस वक्त जो भी है, उन्होंने मुझे लेटर दे दिया रिटर्न, ये ट्री टॉक बंद करो। अभी 5-6 महीने नहीं हुए थे, मैं दिसंबर में शुरू हुई,
तो दरबार मुंह के बगत में। आई डोंट नो हाउ समबडी गॉट आइडिया इन कश्मीर। और जीके में आ गया जी एक आर्टिकल आ गया, वो कौन था उसका भी नाम है मुझे, वो क्या नाम है उसका, वो बड़ा ही टीवी पे बोलता है चैनल में, कादरी क्या नाम है, मैंने याद नहीं, वो भूल गया। तो उसने लिखा जी ये इतना अच्छा ट्रीटा का प्रोग्राम है, जम्मू में ही खत्म हो रहा है, ये सैबोटाज है, ये कोई वो है, मतलब इसमें हमारे खिलाफ हो, हम चाहते हैं कश्मीर में भी हो। माय गॉड, सो दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट एंड देन दिस वाज आल्सो brought to कश्मीर। उसके बाद 6 months here 6 months there it continued। so I will give some, क्योंकि आपका समय भी ज़्यादा होगा। एक, चूंकि हम कहते हैं अंग्रेज़ों ने हमको गुलाम बनाया, और अंग्रेज अगर गुलाम नहीं बनाते तो हमारे 3 हिस्से नहीं होते, जो बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, हम एक होते। लेकिन उसका बीज, वो लड़ाई क्यों हुई, 1757 में हुई और महीना जून का था, गर्मी में। इसमें ये पेड़ जो था ना, जिस जगह पे ये पेड़ बहुत थे और जंगल था इसका, दिस वाज जंगली पेड़। इट वाज बंगाल में एक जगह थी जिसका नाम पलासी था, और चूंकि वो प्लासी की लड़ाई 1757 जून में लड़ी गई, सराजुद्दौला जो नवाब ऑफ बंगाल वाज डिफीटेड, उसमें भी बोलते हैं ABC, इसने ट्रेचरी की, उसने ट्रेचरी की, मीर कासिम है, मीर जाफर, वटेवर, हिस्ट्री इज हिस्ट्री, उसको क्या करना है। पर क्वेश्चन ये है, दिस ट्री गॉट नेम बैटल ऑफ प्लासी ट्री। तो ये हिस्ट्री का एक बिटनेस है इसको, जैसे मैंने बोला हिरोशिमा में जिंको बाइलोवा ने बिटनेस किया, ऐसे ही आलिम का बताया जिसने सिकंदर का एम्पायर को विटनेस किया। और यहाँ भी मैं बात करूंगा तो यहाँ भी बहुत से चिनार के पेड़ हैं जिसने हो सकता है बडशाह को हुकूमत को देखा हो 500-600 साल। तो बडशाह का कब था पीरियड, वो देखें हिस्टोरिकली, तो समटाइम्स यू कैन कोरिलेट विद दैट। सो बट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिनल ट्री, और जिसको हम कहते हैं ब्यूटिया मानोस्पर्मा। बट इट्स बेवरेजेस, चाहे वो टी हो चाहे शरबत हो, इन वट एवर फॉर्म। एंड इसकी दूसरी सर्विस क्या है, इट इज हेल्पिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल। तो एक टाइम था हमने DDT शुरू कर दिया, ट्राइक्लोरोइथेन, लेकिन उसने बेड़ा गर्क कर दिया। और जो हमारी मॉडर्न बायोडाइवर्सिटी एनवायरनमेंट की जो चिंता है, ये वहीं से शुरू हुई, DDT से। DDT अमेरिका ने बहुत ज्यादा यूटिलाइज करने शुरू हुआ, और एक लेडी खड़ी हो गई, रेचल कार्सन, 1962, साइलेंट सफरिंग, क्या बात है, पूरा चेंज हो गया। तो वो पेड़ था, अब वो चला गया, तो अब दूसरा आ गया। तो ये एक और है, इसको रखें 2 मिनट ना, अगला ही रखो, छोड़ो इसको, हो गया इंडिगो फेरा। ये जो प्लांट है जिसको बोलते हैं क्रस, कश्मीरी में क्या बोलते हैं क्रस, जो कांगड़ी में ऊपर वाला, मुझे ये बताया गया, हो सकता है यू कैन करेक्ट, कि भाई नीचे वाले में हीट नहीं चाहिए होती है इतनी, ऊपर हीट होती है तो वो जल जाता है, तो इसकी बेटर मानी जाती है। और फिर मैंने इसका बिल्कुल वो देखा फील्ड में कंफर्मेशन, जब यहाँ पे काफी पत्थरबाजी हो रही थी कुछ, बट मेरी स्पिरिट देखी कि मुझे जंगल जाना ही जाना है। रात के वक्त में निकला यहाँ से 5-6 बजे, तो कहाँ, कुपवाड़ा में गया, तो पथराव थोड़ा सा हो गया था, पर मुझे लगी नहीं। लेकिन रात को मैं वहां रुका, और दूसरे दिन मैं जाता हूं तो आई गॉट द पर्सन फोटो, पता नहीं, ही वाज हैविंग द हेड लोड ऑफ स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट क्रस। वो क्यों ले जा रहा था, ऑब्वियसली आई आस्क्ड हिम, कांगड़ी मेकिंग, ठीक है ना। ये वो प्लांट है, इसको बोलते हैं नील। और जिसका जो हमारे महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, जो कहाँ हुआ, बिहार में, तो दैट वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द प्लांटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लांट। अंग्रेजों ने मार के थोड़ी सी बेच दे के काम लेते थे, और ये नील वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू। अब तो हमारे पास सिंथेटिक नील है जो कपड़ों को नील देते हैं। सो दैट वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम दिस प्लांट। इसके पत्तों को आज भी बॉयल करो तो यू गेट कलर, आप उसमें टेक्सटाइल अपना जो है कलर भी कर सकते हो। दिस इज अनदर, इसको इसलिए दिखाना जरूरी है कि ये वो पेड़ है, माना जाता है एज पर आवर विजडम कि महात्मा बुद्ध गॉट एनलाइटनमेंट अंडर दिस ट्री। सो दिस ट्री इज कॉल्ड ट्री ऑफ एनलाइटनमेंट, बट इट हैज मेडिसिनल बेनिफिट्स। नेक्स्ट, ये आपके इधर भी है, कश्मीरी में आप क्या कहते हो इसको, कश्मीरी में इसका नाम क्या है, हाँ कुछ और बड़ा टिपिकल नाम है, बट आई एम फॉरगेटिंग नाउ। ना नुनर नहीं है, ना ये खट्टा खट्टा होता है,
राइट साइड में ना 3 पत्ते ट्राइफोलियम ना ये ट्राइफोलियम नहीं है, जो ऑक्सैलिस है। यू आर राइट, इसका कश्मीरी नाम है, आई एम फॉरगेटिंग, हो सकता है आ जाए मैं अभी। नहीं बड़ा अच्छा कश्मीरी नाम है इसका। इसकी चटनी खाते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, ओह बड़े दूर चले गए, अंजीर दिखाते, आगे आगे। अच्छा आपके हाथ में कंट्रोल है। अच्छा रुको, ये हमारे ना व्हाट इज द टाइम बताइए। 3:15 है ना, तो 4 बजे तक करें, 3:30 तक करें, 350 ठीक है। तो मीन्स अनदर 30 मिनट्स, 345 तक अनदर 30 मिनट्स, ओके, ठीक। नो इशू। तो दिस इज द ट्री थोड़ा सा चलन के विच, जो आपने इससे पहले कहा। चलो उसकी बात फिर, टाइम मैनेजमेंट है ना अब। बट दिस ट्री इज, इसका फ्रूट होता है, वाइल्ड फ्रूट है, बट दिस स्टैंड डिक्लेयर्ड बाय उत्तराखंड स्टेट एज द स्टेट फ्रूट एंड लॉट ऑफ लाइवलीहुड जनरेशन, लॉट ऑफ फेस्टिवल। और अभी मैं हैरान हो गया देख के, मैं तो हैरान ही हो गया, अभी गूगल में ही देखा कि 500 रुपये किलो बिक रहे हैं, बिकॉज दिस इज लेस क्वांटिटी, इट्स नॉट अवेलेबल। वो नहीं उसको मत करो, वो उसको रखो जी, 1 मिनट रखो, आपका हाथ पकड़ना पड़ेगा, दोस्ती का हाथ। हम अगले छोड़ देते हैं, जिसका जो स्लाइड है ना, उसका जो भी एक डिस्कशन हो जाए, बीच में स्लाइड्स कैन बी स्किप्ड, कोई लगे ना आपको टू मैनेज द टाइम। बट दिस पर्टिकुलर प्लांट हैज आल्सो मैंने रेवर्ड, नॉट ओनली रेवर्ड, प्लांटेड एवरीवेयर इन अमेरिका, शिकागो शहर में ज्यादा मैंने देखा, और हमने कुछ काम नहीं किया। हालांकि मेरे जम्मू के जंगलों में ये है, मैं जब नर्सरी में जाता हूं, आई डोंट फाइंड इवन सिंगल सैपलिंग और सीडलिंग, इवन पीपल डाउन नो। ये भी मैंने रिपोर्ट किया था एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, अदरवाइज ए फॉरेस्ट ऑफिसर इज सपोज टू नो ईच एंड एवरी ट्री यार, का कुछ पता नहीं था। और मैंने भी किससे पूछा, किसी फॉरेस्ट स्टाफ से नहीं, गांव के लोग खड़े थे, और मुझे पता था इसका लोकल नाम, क्योंकि मैंने हिमाचल वगैरह में देखा था। मैंने बोला भाई इस जंगल में काफल होता है क्या? तो वो कहता हाँ जी इसी नाले में है, वहां ले चल मुझे। तो ही टुक मी टू दैट नाला एंड शोड मी द फ्रूट, बट इट हैज द क्योर ऑफ, देखो कैंसर लिखा हुआ है, हार्ट डिजीज ट्रबल्स, माने दिस इज ए मेडिसिनल ट्री। व्हेन वी डेवलप सम हर्बल गार्डन, मेडिसिनल पार्क, तो वी थिंक ओनली ऑफ प्लांट्स लाइक हंद, छोटे छोटे, बट ट्रीज लगाने से ट्रिपल बेनिफिट है। एक तो जो क्लाइमेट चेंज है उसके हवाले से, सॉइल को कंजर्व करने के हवाले से, एंड दिस इज एडिशनल, इसमें ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, जब ये लेग्यूम नहीं है। तो फिर एडिबल फ्रूट है, फिर कह रहे हैं भाई कैंसर, हार्ट, अब ना भी हो, लेकिन पीपल आर यूजिंग एंड अर्निंग लाइवलीहुड। 500 रुपया किलो जो मैं बता रहा हूँ, आई डोंट नो, 500 रुपया किलो टू मच यार, क्योंकि चीज कम है। अगर इसकी कटिंग करके और इसका बहुत बड़ा बाग लगा दिया जाए कटिंग से ही, फिर जब चीजें इतनी सब ओवर सप्लाई हो जाती है तो कास्ट विल कम डाउन। 500 का ये मतलब नहीं, हो सकता है कोई अच्छा बाग इसे क्रिएट करे विद दिस, मैं 500 रुपए में बेचूंगा, प्राइस में कम डाउन टू 200 रुपीज के जी और 100 रुपए के जी। नेक्स्ट, ये टुलिप है, टुलिप गार्डन तो है, लेकिन हम इस टुलिप का रायता जो जंगल में होता है, जिसको गुले लाला, तो ये भी है। हमने कहा भाई सिर्फ फूलों को देख के क्या होगा, न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड, सो इट इज बाय इंडिजिनस नॉलेज, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, तो लोकल विलेजर ब्राड दिस कि हम इसको दिखाते हैं दही रायता बना के। नेक्स्ट, दिस इज अनदर मेडिसिनल प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको माना जाता है नेशनल मेडिसिनल प्लांट, और इसको कोरोना का टाइम में इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटरी, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करने वाला प्लांट माना जाता है। डायबिटीज के लिए, जॉन्डिस के लिए, लिवर के लिए बहुत बढ़िया है। दिस इज नॉट इन कश्मीर, तो इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट, दिस इज अंजीर। अंजीर कई हैं, तो एक अंजीर ये है, जंगली है जे, जो आपके पास तो नहीं है, होता हो भी सकता है, मैं देखना पड़ेगा कश्मीर में। नेक्स्ट, होते होंगे। ये अनदर प्लांट है, ये भी इधर नहीं होगा मेरा, हाइबिस्कस है। दिस इज अनदर मोरिंगा, जो अगर हम कभी वो खाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो क्या होता है, डोसा वगैरह खाते हैं साउथ इंडिया में, बच्चे कभी जाते ही हैं, या तो जम्मू में मिल जाता है, इधर भी मिलता होगा, मुझे नहीं पता।
हो सकता है। तो डोसा जब मिलता है तो वो जो करी होती है सांबर वगैरह उसमें ये पड़ा होता है ये प्लांट। दिस इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, सी, के, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन। और अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में स्पेशली और मैनी अदर जो नेशन जहाँ गुर्बत बहुत है, मेल न्यूट्रिशन बहुत है, तो गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया हुआ है कि हर घर में ये 2-4 पौधे होने चाहिए। और जम्मू में भी या इधर भी हो सकता है, इधर तो लगेगा नीचे, लेकिन बिहार से जो भी लेबर आती है उनको ज्यादा काम करना होता है फिजिकल लेबर, तो दे फोकस ऑन दिस, ये प्लांट लगा लेते हैं अपने साथ, मैंने दे कंज्यूम इट एज वेजिटेबल बिकॉज दिस बूस्ट योर एनर्जी। दिस इज अनदर वेरी कॉमन, दिस यूजफुल फॉर थायराइड प्रॉब्लम्स में ये पर्टिकुलर प्लांट बहुनिया, पता नहीं यहाँ कहीं उड़ी चूड़ी में लगाया हो तो पता नहीं, उड़ी में हो सकता है, बट दिस इज अनदर विच इज रामबाण फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ किडनी ट्रबल्स। और ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर होता है, अगर इसके बीज देखोगे दे लुक लाइक किडनी। अदरवाइज आल्सो बड़ा वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर इसका कलर है। और इसके रेस्पेक्ट में एक पोस्टल स्टैंप जो डाक टिकट भी जारी हुआ है। बट दिस इज ए वेरी वंडरफुल प्लांट अगेंस्ट किडनी ट्रबल्स, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो दिस इज वंडरफुल ट्री विच इज आवर ट्री, इंडियन ट्री। नेक्स्ट, ये उपंछिया है, इसको मैं इसलिए बताना चाहूंगा, जब आजादी की लड़ाई में एक थे फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी, जिन्हें परिंदों के ऊपर बड़ा काम किया, जिनको माना जाता है सलीम अली नहीं। वो सलीम अली ने भी कहा हाँ भाई फादर वही था, क्यों वो अंग्रेज था और वो 18वीं सदी में ही वॉज अ डीसी मैजिस्ट्रेट इटावा में, यूपी में। जब 1857 का पहला विरोध हुआ ना, जिसको आजादी की पहली लड़ाई मानते हैं हिंदुस्तान की, 1857 में ही वॉज ए कलेक्टर एट इटावा यूपी में। और फिर वो डर गया, कुछ लोग हो सकता है रेवोल्यूशनरी गोला ना मार दें, तो वो उसने वो कौन सा वो किला है फतेहपुर सीकरी में, उधर जाके उसने कोई महीने 2 महीने छुपा रहा। हालांकि ही वॉज गुड मैन आल्सो, नॉलेजेबल पर्सन भी था, क्योंकि जब वो मरा, मैं इसलिए कह रहा हूँ अच्छा था, जब वो मरा, कहाँ मरा, यूके में, इटावा बंद हुआ। लेकिन जो उसको डर था, डर भाई 1-2 आदमी से होता है, 4 आदमियों से होता है, सबसे नहीं होता। अदरवाइज वो मर गया, क्यों किया बंद अपने बाजार जब उसके मौत पे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि उसने क्या किया था, एक तो परिंदों के ऊपर बड़ा काम किया, तभी उसको कहते हैं फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। दूसरा उसने इस तरह के कांटेदार पौधे लगा के एक बाड़ लगाई थी उड़ीसा से लेकर फिरोजपुर पंजाब तक, ताकि बीच बीच में थे टैक्स कलेक्शन, नमक का भी टैक्स होता था, नमक भी लेके चले ना जाए लोग, तो टैक्स कलेक्टिंग सेंटर होते, बीच में से बार्ड वायर नहीं लगाई। उसने बोला उसमें खर्चा ज्यादा होता है और फिर इन्वायरमेंटली भी अच्छा नहीं है, तो इट्स ए लाइव हेज, तो पौधा खुद लगेगा। और ये पौधा है कैक्टस है, तो इसको पानी की भी जरूरत नहीं, खाद की भी जरूरत नहीं, पैसा भी कोई नहीं लगना, और खुद ही ये रीजनरेट करता रहेगा। मैंने बायोफेंस, मैंने उसके दिमाग में अंग्रेजों का था रूल, तो बात तो उसी की माननी थी कि टैक्स तो लेना है, अब टैक्स के बिना तो जा नहीं सकते आप। तो अगर कोई उलझ जाएगा, इसको क्रॉस करना मुश्किल होता था। नॉट ओनली दिस बट देयर वर सम अदर थॉर्नी एंड स्पाइनी ट्रीज, उसकी हेज थी जो लिखा हुआ है। तो हमारी आजादी की लड़ाई में दिस इज अनदर अंजीर, जिसको काफी खाया जाता है जम्मू में, विच इज कॉल्ड व्हाइट फिग ट्री। ये लग सकता है उड़ी चूड़ी के इलाके में, बट दिस इज न्यूट्रिशनली वेरी गुड। नेक्स्ट, दिस इज अनदर शीशम ट्री है। तो जो बिलाल साहब का आपने जिक्र किया ना, उनको मैंने ये चाय पिलाई, ये स्क्वाश कश्मीर में, तो मैंने उनको बोला कि भाई इसके पत्ते, जो न्यू पत्ते होते हैं स्प्रिंग में, दे आर रिच इन कैल्शियम, और ये हड्डियों को जोड़ने वाला। फिर वो बोरी भर के लाए, तो फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ स्क्वाश में, उस दिन हमने शीशम की चाय पिलाई, वहां पे कमिश्नर वगैरह आए थे, सभी को। इट्स वेरी यूजफुल प्लांट शीशम, ये आपके उड़ी में मिलता है। ये बबरी बियोल है, यू नो एवरीथिंग, इसको स्किप करो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, अब चलो छोड़ो इसको। हाँ, दिस इज अनदर हिमालयन चेरी, इसका पेड़ लगा था इधर स्क्वाश में, जो शालीमार कैंपस में अभी। हाँ, ये जंगली है। तो एक और आपको क्लू मिल गया बायोडाइवर्सिटी पार्क, चूंकि आप बना रहे हो, जो भी हम बाजार में कल्टीवेट करते हैं, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे वो स्पाइस हो, उसका जंगली रिश्तेदार होता है। वो जंगली रिश्तेदार, जैसे मैं केला कहूं कि केले का जंगली रिश्तेदार जम्मू में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, वो अंडमान में है, जो साउथ इंडिया महाराष्ट्र में है। लेकिन मैं कहूंगा चना, काले चने का रिश्तेदार ढूंढ रहे तो करगिल में मिलेगा, जहां उधर मिलेगा जो चांगथांग एरिया, चांगला पास, उधर मिलेगा वाइल्ड ग्रैम। ऐसे ही चेरी का बोलोगे तो ये हमारे जंगल में है, तो ये लगना चाहिए, क्योंकि ये स्क्वाश में लगा था, तो आपके पास लगना चाहिए। लिखो भाई,
मुझे नहीं पता आप लिख रही हो कि नहीं। हाँ, ये हिमालय, ये आपने लाना है, आपके इलाके में भी होता है ये, तो इसके ऊपर ग्राफ्टिंग भी कर सकते। दिस इज जंगली मैंगो, ये यहाँ नहीं लगेगा, बट चलो आप घूमते फिरते रहोगे, आपकी अपॉइंटमेंट जम्मू भी हो सकती है। दिस इज जंगली मैंगो विच कॉल्ड मैंगीफेरा पिनेटा। तो ये भी मेरे जंगल में है, अब जम्मू के जंगल में है, नॉट इन कश्मीर, बट मैंने जंगली रिश्तेदार है जो हम मैंगो खाते हैं। मैंगो तो आप भी खाते हो। उस मैंगो की अप्रूवमेंट में इससे जीन उधारी ली जा सकती है। समटाइम्स इसकी कौन सी बीमारी को कंट्रोल करने के लिए यू मे नीड द जीन फ्रॉम दिस ट्री। छोड़ो इसको। ये अनदर, ये वाला जो है लाल फूल, ये कोरोना टाइम में साइंटिस्ट ने इसके ऊपर फोकस किया और इसका जो एक्सट्रैक्ट है चाय या बेवरेज के रूप में बेचा भी जा रहा है। उत्तराखंड इज सेलिंग, बट अदरवाइज दिस वाज रिपोर्टेड जो आपका कोरोना वायरस है ना, उसकी रेप्लिकेशन को रोकता है। दिस इज ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड बाय द साइंटिस्ट ड्यूरिंग कोरोना टाइम 2020 की शायद ये वो है रिसर्च। तो दिस इज कॉल्ड रोडोडेंड्रॉन। लेकिन आपके कश्मीर में जो है रोडोडेंड्रॉन जो हमें मिलता है इधर तूतमार गली, जहाँ तोश मैदान, या इधर हम चले जाते हैं गंगबल को जाते हुए, वो है आपका, जहाँ इधर सिंथन टॉप, जहाँ मरगन टॉप, वो है रोडोडेंड्रॉन कैंपेन्युलेटम, वो जहरीला है। तो मैंने बोला भी वो चौपान था उधर, तो मैं थोड़ा सा मुझे पता था होता तो पॉइजनस है, बट फ्लावर में पॉइजन नहीं होता इतना, साइनाइड कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा मैंने चखा, वो मर जाएगा। सो दैट इज मीन जहरीला होता है। बट दिस पर्टिकुलर फ्लावर इज नॉट जहरीला, दिस इज एडिबल और दिस इज ऑल्सो रिपोर्टेड मेडिसिनल। जिसको रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम हमने 7-8 प्लांट लगाए थे। एक लगाया था इधर बेनहामा जो फॉरेस्ट्री का वो था, और 5 साल वो चला।